Warm welcome to this special conversation on the squirrels.in. The Bihar election juggernaut is rolling in full swing. Each day there is some new anecdote or the other which is coming up. Today, great pleasure for us to be welcoming the man who's been traveling across the length and breadth of Bihar, trying to get us deep insights about what is really buzzing in the numerically and politically significant Dalit community of Bihar. Ashok Bharti, chairperson of NACTO, National Association of the Poor, the Underprivileged, the Backwards, the Adivasis, and the Dalit organizations all across the country. Great pleasure for us to be welcoming you, Ashokji. Thank you. Let me first begin by asking you, Ashok, by this study that you have released, where you are telling us exactly what is happening on the ground to the Dalits of Bihar. What's the bullet point summation that one takes? Are we to say that even after 20 years of Nitish Kumar, the plight of specifically the Dalit population in Bihar is still not rising in comparison to the rest of the country? Certainly, that Upendraji, that our study indicates that all the parameters that one can visualize with the perspective of the human development, they are very, very low for all Dalits in Bihar. And it is really quite shocking that the man who is known as a development man of the Bihar has not delivered development to the Dalits at large in Bihar. For example, we look at the data of the literacy, then, Mr. Nitish Kumar came in 2005, and 2011 was a pretty 6 years time. In 2011, when the census took place, the number of the illiterate people were 62%. And after this 20 years, then when we look at the health data, we look at the maternal mortality rate, child mortality rate, we look at the nutritional indicators of the children, stunting, and underweight. All data are very, very far away. Forget about the national, the average. And they are worse compared to the Bihar's general average of these data. Okay. So therefore, I believe that the government must have done lots of the development, but this development has not reached to the Dalits of Bihar. हमारे बड़े दर्शक, हमारे अशोक जी, हमारे बड़े दर्शक क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी आते हैं, तो मैं आपसे हिंदी में वार्तालाप करने का प्रयास करता हूं। मुझको जरा आपके जो रिपोर्ट था उसमें मैंने एक बड़ी दिलचस्प एक चीज मैंने उसमें देखी। आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो बिहार सरकार का जो कैपिटल आउटले है यानी बजटरी एक्सपेंस, वो 4 गुना बढ़ गया, लेकिन जो पैसा दलित वर्ग के लिए बढ़ाया जाना था वो उस अनुपात में नहीं बढ़ा। और भाई पिछले 20 साल से तो वहां पे नीतीश कुमार जी खुद ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको अगर मैं ये बताऊं कि करीब 80,000 करोड़ रुपए का आउटले था जब नीतीश कुमार जी का 2012-13 में या 13-14 में, और अब जो आउटले है वो 3,16,000 करोड़ रुपए का है। तो ये 4 टाइम्स है। लेकिन दलितों को 2079 करोड़ था, फिर बढ़कर उसका जो है वो करीब 4,000 करोड़ के आसपास हो गया। लेकिन यही इशू नहीं है। अगर आप देखें कि जो मैं तो हम लोग जब चीजों को देखते हैं भूपेंद्र जी, तो हम हम दूसरे बहुत सारी चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोशल वेलफेयर का एक्सपेंडिचर देखा। 2012-13 के आसपास जो 15-16 में जो सोशल एक्सपेंडिचर था, आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर होता है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इज एक्चुअली मेंट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन अशोक जी, मैं एक और बड़ा दिलचस्प मतलब आपकी बात से जो अभिप्राय निकलता है वो ये है कि भाई बिहार की पूरी राजनीति पिछड़ा वर्ग बनाम पिछड़े वर्ग में ही जितने दलित, महादलित, मुसहर कम्युनिटी अलग अलग छोटे छोटे वर्गों में बटी हुई है पिछले कई वर्षों से। नीतीश कुमार जी ने अपने आप को हमेशा से पिछड़े वर्ग का एक मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। अब आपकी जो स्टडी बताती है वो तो ये बताती है कि क्या चिराग पासवान, क्या नीतीश कुमार
मतलब सारे के सारे ये सो कॉल्ड पिछड़े वर्ग के नेता एक साथ रहने के बावजूद इतने लंबे समय तक, उसके बावजूद बिहार में आपके मुताबिक दलितों के स्टेटस में स्तर में कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल, हमको ये भी देखना है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे लिए सीएम चाहे जगन्नाथ मिश्रा रहे हों या कोई और रहे हों या जो है नीतीश कुमार हो, दलितों की स्थिति में कोई मौलिक फर्क नहीं आया। और इसलिए मुझे लगता है आज के समय में सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो किसका विकास, कैसा विकास, आपके क्या इंडिकेटर हैं डेवलपमेंट के, वो हमें बताइए। दुनिया में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेवलपमेंट इंडिकेटर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, उसमें लाइफ ऑफ द पर्सन है, ठीक है। तो ये तमाम चीजों पर हमने देखा, जब हमने विश्लेषण किया तो हमने पाया कि फॉर एग्जांपल बिहार में आम आदमी की जो जिंदगी की लंबाई है वो 69.3 ईयर्स है, राइट। और शेड्यूल कास्ट के मामले में केवल 66 ईयर्स है, और इंडिया में तो वो 72 ईयर्स के आसपास है। तो ये जो फर्क है ये दिखाता है कि फिर हमने देखे, जब मैंने लिटरेसी का इंडिकेटर आपको मैंने बताया, हमने मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी के डेटा देखे। चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिया में 97 है नेशनल एवरेज, बिहार में 118 है, और दलितों के मामले में ये 130 है। तो ये जो वाइड गैप है, असल में हमारे देश में है क्या, हमारे देश में सबके लिए योजनाएं बना, हम ये मान के चलते हैं कि सारे धान एक पंसेरी। इस देश की ब्यूरोक्रेसी को जो डोमिनेंटली कम्स फ्रॉम द अपर कास्ट जी, वो ब्यूरोक्रेसी को ये बात समझ में नहीं आती कि सारे धान एक पंसेरी इंडिया में नहीं चल सकते, सारे धान एक पंसेरी बिहार में नहीं चल सकते, क्योंकि लेकिन एक बात है अशोक जी, मैं एक बात कर लूं फिर देन आई कम टू यू, ठीक है। जस्ट कि हमको ये समझना है कि भारत और इंडिया और बिहार की सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासेस ऑफ पीपल हैं वो अपने डेवलपमेंट के अलग अलग लेवल पर हैं। और जब हम सबके लिए एक जैसी योजनाएं बनाते हैं तो सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके बीच के जो गैप है वो लगातार बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक जो मैं आज की घटना आप देखें कि चिराग पासवान नाउ इज सेइंग दैट ही वांट्स टू कॉन्टेस्ट ऑल सीट्स इन बिहार, राइट। दूसरी ओर भाई नीतीश, जैसे मैंने कहा, जनता दल यूनाइटेड तो इतने लंबे समय से वो हमेशा पिछड़े वर्ग की बात करता चला आ रहा है। अगर हम इसको चुनावी संदर्भ में देखें, who do you think is today emerging as the best bet for the Dalit community in Bihar? देखिए, मैं समझता हूं कि बिहार के दलितों को मैं आपको ये बता सकता हूं क्योंकि मैं घूम भी रहा हूं और हमने सर्वे भी किया है। मुझे लगता है कि बिहार के जो दलित हैं वो नीतीश कुमार जी से थक चुके हैं, एनडीए से वो परेशान हैं, और जो चिराग पासवान हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं, और उनकी वैचारिक जो पृष्ठभूमि है और दलितों में इमर्जिंग जो दलितों के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मिडिल क्लास है, जो आम आदमी है, उसके जो मोटिव्स हैं वो उससे एकदम अलग हैं। तो मुझे लगता है दूसरा कि अभी तक ये जो सारे के सारे लोग हैं ये कोई एक विजन दलित समाज के सामने रखने में कामयाब नहीं हुए। इस मामले में मैं ये देखता हूं कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो थोड़ा सा अलग है, उन्होंने बाकायदा पिछड़ी जातियों के लिए एक मैनिफेस्टो घोषित किया। 5 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने बाकायदा दलितों से 17 वायदे किए, जिसमें एक दृष्टि दिखाई देती है। और इस बात की मुझे खुशी है कि कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने हमारे पाटलिपुत्र दलित सम्मेलन में हम लोगों ने उनके साथ शेयर किए थे, उनको उन्होंने अपने दलित मैनिफेस्टो में शामिल। लेकिन मैं आपका ध्यान में अगर आकर्षित करूं, अभी अमिताभ तिवारी जी जाने माने, इज अ वेल नोन सेफोलॉजिस्ट, आई हैव इंटरव्यूड हिम। अभी उन्होंने वोट वाइब उन्होंने एक सर्वे उन्होंने निकाला वेयर ही इज शोइंग दैट ये जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है, और खास तौर से वो पिछड़े वर्ग दलित वर्ग की महिलाओं को जो दिया जा रहा है, उसके कारण वो लोग जो नीतीश कुमार से नाराज थे, शायद वो दोबारा से नीतीश कुमार की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, ये भी तो पिछड़े वर्ग को दी जा रही है ना अशोक भाई? देखिए, अमिताभ तिवारी जी को एक हकीकत शायद उनको सारी जानकारी होगी, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 10,000 रुपए है ये जीविका वाली दीदियों को दी जा रही है, जो जीविका में है, और जीविका वाले तो ऑलरेडी नीतीश कुमार जी के वोट बैंक हैं, ठीक है। तो
ये हमें समझना है कि ये जो पैसा है, और दूसरा एक बात ये भी है कि बिहार के लोगों को क्या पैसे से खरीदा जाएगा? ये बिहार के लोगों में इस बात को घर किया जा रहा है, लोगों के बीच में ये बात है कि देखा महाराष्ट्र में भी हुआ है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये द रीजन व्हाई बिहार का जो मानस है और महाराष्ट्र का जो जनमानस है बहुत फर्क है। लेकिन नहीं, मैं बिहार का जनमानस राजनीतिक है, वो मौके के हिसाब से चीजों को देखता है। वो कह रहा है कि अभी क्यों दे रहे हैं हमको ये, नीतीश जी की सरकार तो इतने साल से, तब पहले क्यों नहीं दिया 9-10 हजार रुपए हमको, अभी क्यों दे रहे हैं? तो ये जो है ना, बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा हमको ये भी समझना है कि बिहार महाराष्ट्र में बाइपोलर इलेक्शन था, और यहाँ पर जो है मल्टीपल एक्टर्स हैं। इलेक्शन यहाँ भी बाइपोलर होगा, लेकिन मल्टीपल कॉर्नर से नीति, ये जो स्कीम है इसकी जो, इसको एक्सपोज किया जा रहा है, इसका भंडाफोड़ लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 10,000 रुपए कुछ तो उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि लार्जली इट शुड नॉट अफेक्ट द बिहार सिलेक्शन। सो यू आर सेइंग दैट इन योर अंडरस्टैंडिंग, आप जो जहां घूम रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दलित वर्ग के लिए, जो कि मतलब बिहार में तीसरा सबसे बड़ा, मतलब करीबन देश की 8.5% दलित पॉपुलेशन इस वक्त बिहार में है, आप ये कह रहे हैं कि वो जो वर्ग है वो एनडीए से हट के अब कुछ और ऑप्शन तलाश रहा है? क्या मैं सही समझ रहा हूं आपको? एक बात और बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने 2 लाख रुपया प्रत्येक दलित व्यक्ति को देने का वायदा किया था। उसके लिए एक एस्टेब्लिशमेंट भी बनाया था, मशीनरी बनाई थी। वो मशीनरी उन्होंने खत्म कर दी, बंद कर दी, वो पैसा देना बंद कर दिया उन्होंने। वो पैसा दिया ही नहीं लोगों को। वही पैसा जो है 2 लाख रुपया जो हर दलित परिवार को मिलना था, उसी पैसे में से 10,000 पैसा अब जो है गैर दलितों को बांटा जा रहा है, ये महिलाओं को बांटा जा रहा है। इस देश में साया से ये कोशिश होती है कि दलितों का मुकाबला किसी और समाज के साथ तो कर नहीं सकते, तो दलितों के समांतर महिलाओं को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो नीतीश कुमार जी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि दलितों से पैसा छीनो और महिलाओं को पैसा बांट दो। तो लेकिन आप मेरी बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या दलित वर्ग जो है, आप जो कह रहे हैं कि थक गया है, तो थक के किधर देख रहा है दलित वर्ग? क्या प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है, तेजस्वी की तरफ देख रहा है, किधर देख रहा है? वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि मैं तो, मतलब प्रशांत किशोर तो क्लियरली अपनी जातिगत अलायंस, अपना जातिगत चरित्र दिखा चुके हैं। आपको पता है ना उन्होंने क्या कहा था, अभी चमारी शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने। जो व्यक्ति चमारों के प्रति घृणा रखता है, वो व्यक्ति कैसे दलितों का वोट पाएगा? जो दुसाधों के प्रति घृणा रखता है, जो दलित जातियों के प्रति, जिसके दिल में घृणा बैठी हुई है, जो उसकी बातों में बार बार निकल कर आती है, दलित क्यों वोट देगा उसको? तो वो बात तो उसके मुंह से निकल कर आई है, मैं नहीं कह रहा ये। जी जी, ये तो उसके बयान में निकल कर आई है। और अंत में मुझको ये बताइए कि कल जब आपसे चर्चा हो रही थी, आप जो मुख्य चुनाव, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, जो शू थ्रोइंग इंसिडेंट था जस्टिस गवई के ऊपर, अब तो ये निकल के आ रहा है द पर्सन हु थ्रू द शू वाज आल्सो अ दलित, येट यू बिलीव दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज प्लेइंग आउट इन बिहार। ये कैसे संभव हो सकता है? सर देखिए क्या होता है कि जो आरी है ना, वो पेड़ को काटती है, लेकिन उसमें बैठा जो होता है ना, वो तो लकड़ी का ही लगा होता है। तो मतलब लोहे को लोहा नहीं काटता है। सवाल इस बात का नहीं है किसने जूता मारा, सवाल इस बात का है जूता किसने मरवाया और क्यों मरवाया। किसने मरवाया, जरा ये गुत्थी जरा सुलझाइए जरा। उसने खुद ही कहा है ना, सनातनियों ने मैं सनातनी हूं, सनातनियों ने मरवाया। सनातनी कौन है आज? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के अलावा सनातनी कौन है इस देश में? तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये काम करवा दिया खुद? इतना तो मैं साफ नहीं कह सकता आपको, लेकिन इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि इस व्यक्ति के पीछे कौन है। ठीक है, तो अंत में अगर मैं आपकी मोटी बात समझूं, आप ब्रॉडली व्हाट यू आर सेइंग अशोक जी इज दिस, दैट द दलित community is not happy with the state of affairs in Bihar. That's the way to understand. Absolutely. Okay. Always a pleasure speaking to you, Ashok ji. Thank you so much. We'll come back to you right through this course of election campaign.